choose the right thing for the citizens. He can decide without interfering with the public's choice. So the development will be fast and steady. Okay, very good. You want to say that in non-democratic country, the ruler can take any decision without any interference. That's why in non-democratic country, the decision-making process is very fast. Therefore, you together with your team is just supporting this non-democratic country. You want to say that? Yes, sir. I'm correct. Yes, sir. Okay, and it's Kanishka. Then why your team is just against of non-democratic country? Why you all are not accepting the statement of Ali Abbas? Tell me fast, Kanishka. I will count till five. Kanishka, now it's your turn. Kanishka, Kanishka, Asutosh, and Aditya Kumar, you all are just supporting democracy. Continue. Kanishka, your team. सर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में और कोई रिलीजन को राइट नहीं मिलता। और बोलिए, एक लाइन बोल के आप डिबेट करोगे। एक स्टेटमेंट बोल के साइलेंट अगर आप लोग हो जाएंगे तो डिबेट ऐसे होता है। बोलो तो पहले तो आप बहुत अच्छा डिबेट करते थे। Okay, Ali Abbas, your statement is that in non-democratic country, decision-making process is very fast. Okay, I'm just Yes, sir. supporting you. Yes, But sir. maybe that decisions can be wrong. Means there is 50-50% chances that sometimes your decisions can be correct, sometimes it can be incorrect. सर Okay. Sir, in non-democratic country, people have not right to choose their leaders or changing them. Okay, clear. Okay. According to Kanishka, in non-democratic country, we the people don't have any right to express our view. We cannot elect our representative according to our own desires. Leaders are imposed inside our country by force, and the people, according to her, the people are also not satisfied with the government completely. Therefore, they are just supporting democratic system, not non-democratic. What do you want to say, the team of Ali Abbas? What do you want to say, Ali Abbas and your team? Yes, sir. आपके टीम में कौन कौन है? Sir, Arya Bhardwaj and Aditya Kumar. आदित्य कुमार है। आदित्य कुमार, अनम्यूट करो अपने को। आदित्य, यस अनम्यूट सर। योरसेल्फ। चलो यस सर। कंटिन्यू। सर क्या? Why are you supporting non-democratic country? सर क्योंकि सर नेता पे भरोसा नहीं हमको। नेता पे भरोसा नहीं, पब्लिक पे भरोसा है ना। यस सर। तो डेमोक्रेसी का मतलब पब्लिक का सरकार, नेता का सरकार थोड़ी ना। नेता का सर सरकार तो नॉन डेमोक्रेटिक सर कंट्री में। पब्लिक पे भी भरोसा नहीं है सर, वो सब भी बिक जाता है सर। तो पब्लिक में तो आपके फादर भी है, वो भी बिक जाते हैं। नहीं सर। क्यों नहीं? पब्लिक, तुम्हारे पापा पब्लिक नहीं है? सर हैं सर, पर वो नहीं तुम्हारे बिकते अंकल हैं। पब्लिक नहीं है?
सर है सर। ग्रैंडफादर पब्लिक नहीं है, मदर पब्लिक नहीं है, ग्रैंड मदर पब्लिक सर नहीं सब कोई है, फैमिली है, पब्लिक है सर। तो फिर पब्लिक बिक जाता है, मतलब ये लोग भी बिक जाते हैं। अरे पापा सर ने बोला होता कि है सर। देश तो बिक जाते हैं ना ये लोग। सर कल डीएनए में सर दिखा रहा था सर कि सब वोट के लिए आई वो लोग पैसा डोंट देता है लोग। वेट, आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑफ एनी न्यूज एजेंसीज, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टेटमेंट। You have just told that the people of India are being sold. So your family members, your family members, your family members also belong to the same nations. Then you want to say that they can also be sold. Your statement is that, na? Tell me first, Aditya. आप इसी तरह किसी पे भी आप कैसे क्लेम एंड ब्लेम कर सकते हो? किसी भी देश की जनता बिक जाती है, देश की जनता में तो आप भी आते हो। अब कहने का मतलब एक दो Yes, sir. अगर पूरे आलू का ढेर में एक दो आलू अगर सड़ा हुआ है तो उससे तुम ये नहीं ना बोले पूरा आलू सड़ा सबको लेकर कुएं में फेंक दो। अरे बोले क्या? नो सर। तो फिर पूरे देश की जनता के ऊपर आप क्लेम एंड ब्लेम कैसे कर दोगे? इट्स नॉट करेक्ट। हम भी इस देश की जनता, हम लोग बिक जाते हैं। नो सर। हम क्यों बिकेंगे? वी नो आवर राइट्स एंड वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स। हमें अपना अधिकार पता है। And we are those people who do not run behind money. We run behind quality. We run behind social activities. We run behind social service. Tell me one thing. We are here. We are here for what? To make the future of our country bright, na? तो यहाँ पे क्या हम लोग बिक रहे हैं? नो सर। Don't give such type of statements. नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट अगर आप दे रहे हो तो देखिए यही पॉइंट है। किसी भी देश की जनता पे आप डायरेक्टली क्लेम एंड ब्लेम नहीं करते हैं। देश की जनता है। अरे इंडिया क्या है? भारत एक डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातंत्र, प्रजा की सरकार। जैसे पब्लिक चाहे वैसे सरकार चलाए, ये पब्लिक के ऊपर है। ये हम कह सकते हैं डाइवर्जन ऑफ ब्रेन। पब्लिक का दिमाग कभी इधर कभी उधर, वो अलग चीजें हो जाती है, ठीक है। अब कुछ लोग हैं, मैं ये सपोर्ट करता हुआ ऐसा नहीं बोलता कि आप एकदम गलत हो, कुछ लोग हैं, पर 10% को लेके पूरे 100% पे आप क्लेम तो नहीं ना कर सकते। यस कि नो? आदित्य, आदित्य आर यू गेटिंग? यस सर। 10% लोगों को लेके आप 100% लोगों को आप बिका हुआ नहीं ना बोल सकते कि दे ऑल आर सोल्ड। तो इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देंगे हम लोग कभी, नेवर। चलो कनिष्का, आपके पास एक और पॉइंट है। क्या पॉइंट है? Sir, in non-democratic country, if people raise their voice in public, they may be arrested or put in jail. Very good. In non-democratic country, if anybody will ask a single negative words against the ruler, then he will be put behind the bar or be punished too. It is a statement of Kanishka. Are you satisfied, Ali Abbas? So, but the ruler always does everything in to develop the country in the कंट्री के लिए करता है सर। जो भी उसका रूलर करता है वो कंट्री के अच्छे के लिए करता है, फॉर द गुड ऑफ द कंट्री। एक बात बताओ, नॉर्थ कोरिया का नाम सुना है? सर यस क्यों? तो Yes, नॉर्थ कोरिया में जो किम जोन कर रहा है वो किसके भले के लिए कर रहा है? sir, I don't know.
I और कोई don't का नाम know नहीं the out सुना of है? the. Okay. Something more? अभिनव आदित्य. अभिनव आदित्य. Yes, sir. Continue. अभिनव आदित्य कंटिन्यू. अभिनव तुम किस टीम में है? अभिनव तुम किस टीम में है? अभिनव आदित्य आप किस टीम में हो? सर क्या हो रहा है? टॉपिक क्या है? टॉपिक था डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक के बीच डिबेट है, तो तुम डेमोक्रेटिक में कि नॉन डेमोक्रेटिक में है? डेमोक्रेटिक. हेलो. ओके. Sir, I have a question that is what happen if India be a non-democratic? चलो अरे कनिष्का पूछो ये क्वेश्चन. कनिष्का ask. कनिष्का अनम्यूट करो अपने को and continue ask your question. हाँ. कनिष्का continue ask your question. कनिष्का. ओके नेक्स्ट. कनिष्का का शायद एक क्वेश्चन था. अच्छा डेमोक्रेटिक के फेवर में कौन कौन लोग एक बार हैंड को रेज करो तो. Who are just in the favor of democratic? Raise your hands, please. Raise your hands. Raise your hands.
देख लो अपने टीम को। कनिष्का, आशुतोष और कौन है? अभिनव, आदित्य। हैंड रेज करो। कनिष्का तुम्हारे टीम में 3 है, आशुतोष भी है और अभिनव, आदित्य भी है। चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछो कनिष्का, क्या क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन पूछिए। डेमोक्रेटिक का देखिए, कनिष्का का एक क्वेश्चन था शायद, मुझे जहां तक याद है, अभी मैं चैट में देख लेता हूँ। तो क्वेश्चन है कि सर, आई हैव अ क्वेश्चन दैट इज व्हाट हैपेंस इफ इंडिया टू बी ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अगर भारत जो है एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो क्या होता? क्या होता? अली अब्बास, क्या होता? अली अब्बास, Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या क्वेश्चन Yes, पूछा sir. उन्होंने? Yes, sir. आंसर बोलो। भैया क्वेश्चन पूछो और आंसर दो। अगर भारत एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होता तो क्या होता? अली अब्बास, अली अब्बास Yes, sir. नहीं बोल रहा है, बंद कर दूं मैं डिबेट? No, sir. बोलो क्या होता है इंडिया का नॉन डेमोक्रेटिक होता तो? अली अब्बास, तेरे को पॉइंटर नहीं मिल रहा है। आदित्य कुमार, यस सर। क्या होता है? सर क्या? तुम लोग एक बार में सुनता नहीं, एक ही क्वेश्चन को मेरे को बार बार बुलवाता है। अब कनिष्का का क्वेश्चन है कि अगर हमारा देश नॉन डेमोक्रेटिक होता तो क्या होता? सर उसमें राजा रहता। और सर राज करता। और और सर हम लोग उसके प्रजा रहते हैं लोग सर। क्या? सर वो नॉन आप लोगों को बोलने में प्रॉब्लम है? कनिष्का बोलो, अनम्यूट होकर बोलिएगा तब तो आवाज आएगी। तुम चैट में आंसर मैंने करने के लिए बोला क्या किसी को? आपको आंसर ओरल देना है। कनिष्का आप ही बोलो, अगर एक हमारा देश नॉन डेमोक्रेटिक होता तो क्या होता? व्हाट हैपेंस इफ इंडिया adopted non democratic system? The other political parties are banned. चलो पहला पॉइंट है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर बैंड। चलो सेकंड और बोलो। और क्या Freedom होता? of speech is censored. फ्रीडम ऑफ स्पीच is क्या चीज? नेक्स्ट और क्या? People cannot involving in election. People cannot involve in election, okay? Or removing their leaders. क्या? All removing their leaders.
देखो, अगर if India accepts non-democratic system, then what will happen inside our country? Get the answer. The first, the brotherhood and fraternity of our country will be collapsed. सबसे पहले तो आपके देश के अंदर जो भाईचारा है वो खत्म हो जाएगा. सेकंड है कि the spirit of democracy would be in danger. हमारे देश का जो वास्तव में जो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पिरिट है वो खतरे में पड़ जाएगा. और क्या होगा? तो all the system will work and start in a fluctuate manner. Secularism will be in danger. One major ideology will start to dominate over other minor religions. Means, in another word, you can say that all system of our country will be completely damaged if India will accept non-democratic system. Then, am I correct? Yes or no? Fast tell me. किसी को कुछ क्वेश्चन करना है? कोई क्वेश्चन करना आप लोग को? Abhinav, Aditya, Ali Abbas. Why India adopted the parliamentary system? What if India adopted the presidential system? Will it Why? affect the government? बोलो. Sir, India adopted the parliamentary system, but if India had adopted the presidential system, will it affect the government? What will be its effect? Sir. You want to ask the question. Yes, sir. First, in 1947, when our country got independence, then the leaders of our country thought deeply which system should be applied inside our country. And as you know that before 1947, you the people were treated like the slaves. You didn't have rights. You were treated like animals. But after 1947, when the political leader of our country met together, then they decided for what? That the country should be in the hand of public. Not any ruler, not any merchant, not any king. Therefore, they adopted as a parliamentary system, because you know that parliamentary system means where there is president head, where their president is head. President is elected for prime minister is elected with the help of MPs, and MPs are elected directly by the people. So कहने का मतलब पब्लिक है, पीपल्स है, उन लोगों ने वोट देके क्या करा, एमपी को चुना, एमपी ने प्रधानमंत्री को चुना. तो कहने का मतलब है कि पब्लिक के राइट्स के लिए, पब्लिक के पावर को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए हमारे देश ने क्या किया, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया. गेटिंग? समझ में आया कि बात? Got it, sir. Yes, sir. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो जल्दी फास्ट. क्वेश्चन.
क्वेश्चन पूछने के लिए बोला मैंने। कनिष्का क्वेश्चन पूछो। नो क्वेश्चन। अभिनव आदित्य क्वेश्चन पूछो। जब आप लोग बोलते हो नो क्वेश्चन, इसका मतलब घर पे आप लोग पढ़ते नहीं हो। घर पे जब स्टडी करने लगोगे तो क्वेश्चन ज्यादा मिलने लगेगा। अरे भारद्वाज, तुम अप एंड डाउन कर रहे हो बहुत ज्यादा। चैप्टर से अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछो तुम लोग फास्ट। आर्य, अली अब्बास क्वेश्चन पूछो। अच्छा मैं पूछता हूँ क्वेश्चन भी बताओ। पहले अली अब्बास ये बताओ कि व्हाट इज इलेक्शन। इलेक्शन क्या है? Sir, election is a procedure in which the public chooses its representative to form the government. आदित्य, वो क्या पढ़ता है कि तुम लोग के पास क्वेश्चन ही नहीं रहे भाई। तुम लोग जितना आप लोग को बताया गया टॉपिक डील किया आप लोगों ने। टेस्ट में अगर स्कोर कम आया भैया तो याद रखना पनिशमेंट मिलेगी आप लोगों को। कनिष्का, और कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास? आशुतोष, आशुतोष अनम्यूट करो अपने को। यस सर। तेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? सोच रहे हैं सोचने में तो तुम्हारा टाइम निकल जाएगा। घर पे सोच के नहीं आता क्या? जब तुमको पता है कि असिस्टेंट क्लास है तो तुमको तो टॉपिक लेके आना चाहिए था ना। जब तुमको पता है कि आज क्लास है तो तुमको क्वेश्चन तो लेके आना चाहिए। अब यहाँ पे सोचेगा तो घर पे रिप्लाई लेगा क्या? अभिनव आदित्य, अभिनव आदित्य, अभिनव, आदित्य कुमार, आशुतोष ये बताओ सर। ये बताओ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या डिफरेंस है? पार्लियामेंट्री में सर प्रेसिडेंट
पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होता है और प्रेसिडेंशियल में प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंशियल में सर बता रहे हैं, एक मिनट। कनिष्का ये बताओ मेरे को, what is the difference between secular state and communal state? कनिष्का, difference between secular and communal state पता है? yes कि no? Yes, sir. बताओ फास्ट, पता है तो। कनिष्का कंटिन्यू। In secular country, no one religion has been official, right? All religion are treated equally. और And everyone is free to celebrate their festival according to their religion. And communal country में no other religion have any right. एग्जाम्पल दो कम्युनल कंट्री का। कौन से कंट्री का? कम्युनल कंट्री का एग्जाम्पल दो। सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया। और एक एग्जाम्पल दे दो। और एक एग्जाम्पल दो। अच्छा अली अब्बास आप बोलो। So, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। sir, constitution is really important in democracy because constitution is meant for the welfare and the security of people. Constitution is a framework on which the government exists and form. The government runs on the basis of constitution. Therefore, constitution is a really important part of the democracy. ओके नेक्स्ट अभिनव आदित्य, आपको मेरी आवाज जा रही है? अभिनव आदित्य Yes, sir. ये बताओ, एक सिंपल सा पॉइंट है मेरे पास। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, यू नो इट वेल। अभिनव आदित्य नहीं बताना है। अच्छा कनिष्का, एक और क्वेश्चन आपके लिए है, पूछे? ये बताओ, फेडरल कंट्री, इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, हाउ जस्टिफाई करो। भारत एक फेडरल कंट्री कैसे है,
इसको जस्टिफाई करो तो। Because of division of powers. Because in India there is a division of power. अच्छा चलो एक बात होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कनिष्का सेम क्वेश्चन फॉर यू। ये अभी कोई मेरे को नींद लग रहा था, बहुत अच्छा है। कनिष्का यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आगे से पूरा प्रश्न आ गया हमारा। कनिष्का यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कनिष्का कनिष्का चलिए पास बोलो। All power stay in a single hand. पहले तो क्यों नहीं बोल रहे थे आप लोग? मेरे को ज्यादा आवाज नहीं करवा दोगे, आप तिवारी जी थक जाए, हमारे सर थक जाए, उसके बाद हम लोग जवाब देंगे। जिस सोच रहे थे, याद कर रहे थे। सोचने में नहीं भाई, सोचे मेरे को हरास करा दिया, थक गया, मेरे को अब चाय पीने जाना पड़ेगा। बोलो, हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रही थी? All power stay in a single hand. All power stay in a single hand. एग्जाम्पल पता है जल्दी, फास्ट यूनिटरी का एग्जाम्पल, टेल मी फास्ट, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। टेल मी। Britain. नो 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 नो, चाइना। नाम सुना है चाइना का? कितने लोगों ने चाइना का नाम सुना है? हैंड रेज करो। मैंने हैंड रेज कर दिया। कितने लोगों ने चाइना का नाम सुना है? फास्ट फास्ट एवरीबॉडी। सर सबने सुना? हाँ बोलो। कौन से कंट्री का अभी बोल कि नहीं? मैंने बोला चाइना का नाम कितने लोगों ने सुना है? क्या लिखिए, कोरोना के आने के बाद तो सबने सुना होगा। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि आप लोग कोरोना के चाइना के वुहान का नाम, चाइना के वुहान का नाम, शी जिनपिंग का नाम, डाउन डाउन डाउन, चाइना के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, कोरोना आ जाएगा। अब ये मेरे को बताओ, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आपके देश में कितने, पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के हैं पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम? हैंड को रेज करो जिसको पता है, फास्ट। टेक दैट की। चलो अली अब्बास, टेल मी। There are three political party systems: one party system, two party system, and multi-party system. कनिष्का, मैंने पूरे वर्ल्ड में बोला पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कितने हैं, मैंने ये नहीं बोला कि आपके देश में नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कितने। देखो क्वेश्चन को समझोगे तभी आप आंसर परफेक्ट दे पाओगे, इसको दिमाग में रखना। फर्स्ट थिंग, देखो पहला स्टूडेंट, ए गुड स्टूडेंट, यू नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड स्टूडेंट? फर्स्ट, an ideal student should listen, then think, then manufacture the answer, then at last throw out from your mouth. Getting? तो पहले क्वेश्चन को सुनो,
समझो, दिमाग के अंदर उसको फिल्टर करो और तब थ्रो करो माउथ से। कनिष्का बोलो। कनिष्का ये बोलो, वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है? कौन बताएगा वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है? भूल गए? ओह नो, कैसे भूल सकते हो भाई? अली अब्बास बोलिए, व्हाट डू यू मीन बाय वन पार्टी सिस्टम? So a one-party system is a system in which only a single party has a chance to form the government in a क्या country. बात है, एक्सीलेंट। मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा नेशन वेयर ए सिंगल पार्टी has a right to come in power and other party do not have rights, other ideology, other ideas are being suppressed completely. एग्जांपल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। टू पार्टी कौन बताएगा? एनीबॉडी रेज योर हैंड्स। टू पार्टी सिस्टम। Only Ali Abbas has taken all the responsibility to respond all the questions. And rest students, चलो बोलो अली अब्बास, टू पार्टी सिस्टम। So in two-party system, only two parties compete and compete to form the government. In two party system, only two parties have possibility to come in power. Example USA. चलो। And multi-party system. Anybody? Okay, Ali Abbas. So in a multi-party system, a lot of parties compete to form the government. In multi-party system, more than two parties have possibility to come in power. Example India. अच्छा ये मेरे को बताओ, from one to multi, from choice, one party is perfect, one political party system is perfect. Okay, Ali Abbas, tell me So multi-party system. why. So because in multi-party system, every ideology has a chance to form the government and practice in the administration. But whenever you will talk about development, then whenever you will talk about the development, then in that case you will get that one party system is just on the top and multi-party system is on the bottom. So in the term of development, multi-party system is not good, because in multi-party system the government cannot be stable, and in an unstable government you cannot imagine about a stable development. That's why we can say that in the term of development, multi-party system is worst, because in multi-party system decision making process is slow, everything is slow and slow. But whenever you will talk about one party system, then everything is fast, because there is no any opposition. But sir, in multi-party system, the voice of the public is listened, and in What is one-party needed? system, What is needed? Suppose that from 1947 we have entered in 2021. About 80 years we have spent, and you want to say that public's voice is being listened, लोगों की आवाज सुनी जाती है। 80 साल में अगर लोगों की आवाज सुनी जाती तो जो गरीब है वो गरीब ही नहीं रह जाते, वो भी हमें, कोई गरीब ऐसा बोलता है वो गरीबी रहने दो, वो ये बोलता है मुझे भी पैसे वाला बनाओ, तो 80 साल तक अगर उनकी बातों को सुना जाता वो सब पैसे वाले हो गए होते, सब रिचेस्ट हो गए होते। तो केवल बोलने के लिए कि भाई गरीबों की आवाज सुनी जाती है, आवाज सुनी जाती है, आवाज सुनने क्या करता है, उसके लिए कुछ करता ही नहीं है, तुम केवल आवाज सुनिए, हाँ ठीक है अभी गरीबी दूर कर देंगे, फिर गरीब तो वहीं पे है।
Ali Abbas. In multi-party system, the voice of poor are being listened. It is clear. And if it is true, then why after 80 years the situation of poor is same? There is no any changes in their conditions. Tell me fast. Ali Abbas, Yes, sir. tell me. Am I wrong and right? Tell me first tell me. Am I wrong or right? So you're right. But sir, one party system, the minorities left untouched. Uh, the minority is always ignored, and the development of minority is not taken in the mind. But in one party system, the development of each and everyone is same, means nobody is there. You know what? So it's not the same, Ajay, but you are talking that in one party system, the interest of minority is being suppressed. You want to say that? yes, sir. Okay. Then in India, imagine total MPs 545, पूरे आपके 545 MPs हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसमें से आपने क्या इसके 300-350 MP जो है वो नरेंद्र मोदी जी के फेवर में आते हैं कि चलिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो उसमें से 150 लोग तो ऐसे हैं ना जो आपके अगेंस्ट में खड़े हैं। नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो आपने वो 150 जो बता रहे कि भाई इनको प्रधानमंत्री मत बनाओ, फिर भी उनके इंटरेस्ट को तो कुचल दिया आपने और मेजोरिटी को लेके आपने सरकार बना ली। तो यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री में भी तो यही हो रहा है कि माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है। माइनॉरिटी का तो इंटरेस्ट ही आपने बोला क्या कि एवरीवन, इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन इज बीइंग ट्रीटेड इक्वली। सबके इंटरेस्ट को एक जैसा ट्रीट किया जाता है। कहाँ इंटरेस्ट को ट्रीट किया जा रहा है? सपोज करो, इमेजिन करो, आपके देश में एक छोटा बच्चा पर बता रहा हूँ, किसी भी तरह के डिसीजन को देख लो, अपने स्टेट में ही देख लो, बिहार का इलेक्शन अभी हुआ, तो बिहार के इलेक्शन में सारे के सारे लोग चाहते थे क्या कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए? टेल मी। अली अब्बास, Yes, sir. सब चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए। No, sir. तो जो नहीं चाहते थे उनके इंटरेस्ट को तो आपने सप्रेस कर दिया और मेजोरिटी को प्रेफर किया। तो डेमोक्रेसी इंडिया में भी तो ये बोल सकते हैं ना कि नो, एवरीवन इज नॉट इक्वल, the interest of everyone is not treated equally, only interest of majority is being treated equally। जो मेजोरिटी में इंटरेस्ट होता है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, माइनॉरिटी को दबा दिया जाता है। यह है कि नहीं इंडिया में? Yes, sir, but the opposition has also a role in the administration. If क्या the अपोजिशन? अच्छा एक बार, अपोजिशन में क्या रोल है? sir, if क्या the रोल कर रहा है अपोजिशन? केवल if the चिल्लाता है, ये ruling नहीं होना party, चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पर तो वही होता है जो आपका हेड डिपार्टमेंट चाहता है। बोलो वाली आकाश। yes, sir. टेल मी, बोलो। कनिष्का, आप लोग बोल नहीं रहे हो। I don't like these type of students, silent students। Sir, but sir, if the majority has done something wrong, then in the next election the people can choose again. And if they feel the first government has not done good, they can change the government. In 5 years you will have to wait ना। 5 साल के लिए आपने अपने देश को एक ऐसे हाथ में तो दे दिया। आप अपने घर को 2 दिन के लिए पड़ोसी के हाथ में दे सकते हो क्या कि लो भाई अगर तुम गलत करोगे तो हम अपना घर वापस ले लेंगे? तो यहाँ तो अपने देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो।
कंट्री के बाद इतने बड़े नेशन लेवल पे आप इसको एक्सपेरिमेंट करने की बात करते हो। अरे बस आप अपने घर को किसी को 2 दिन के लिए दे दो क्या, कि अगर 2 दिन ये मेरा घर पकड़ के रखिए, रहिए आराम से, अगर खराब करिएगा तो हम चेंज कर देंगे आपको। No, sir. ये तो अपना घर नहीं दे सकता 2 दिन के लिए, तो ये हिंदुस्तान इतना बड़ा देश जो है, 130 करोड़ की जनसंख्या का देश, किसी के भी आदमी दे दोगे कि लो भाई 5 साल के लिए रहो, तुम अच्छा नहीं करेगा तो तुमको हटा के हम दूसरे आदमी को यहाँ बना देंगे। No, sir. Are you getting what I want to say? भैया समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. और कुछ पूछना है anybody? आप लोग कुछ और पूछना है anyone? पूछना है तो यस बोलो, नहीं पूछना है तो नो बोलो, फास्ट एवरीबॉडी। कोई डाउट आप लोग को? No, sir. एवरीबॉडी नहीं पूछना, नो लिखो, पूछना है यस लिखो, डाउट करो फास्ट, चैट में आंसर करो। कनिष्का नो डाउट, ओके नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पूछना है तो यस करिए, नहीं पूछना है नो करिए, फास्ट एवरीबॉडी। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले क्या? ब्रेक ले लीजिए सर। ओके, जिस टॉपिक को पढ़ना है उस टॉपिक को रीड करके आइए। ओके, एंजॉय।